children, today we are going to start chapter number 14, North America Economic Features. In the previous video, we had studied about the North America political and physical features. Now today we will read about what is the meaning of economic features, what are natural resources, what are the features of agriculture in North America, what is the contribution of mineral and energy sources to the industries in North America, which are the industries based on forest and animals, how the mean of transportation have developed in North America, how is the distribution of population in North America. Before start the chapter, children, I have to say you that you have to read the chapter word to word. I will give you only summary. So let's start. At present, North America is the most prosperous and a very highly industrialized continent of the world. Its economic condition is very strong. It is also very advanced continent in industries also. This is mainly because of its vast natural resources and high level of technology to use them. तो स्टूडेंट, नॉर्थ अमेरिका आज के समय में सबसे संपन्न महाद्वीप है और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है और टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे है। The fertile plains, extensive grasslands, broad belts of forest, extensive fishing grounds around its coast and minerals are the valuable natural resources of North America. USA and Canada are the important nation of North America. Main economic resources of North America are agriculture, mineral and energy, industry and transport, forest, fishery, population and major cities. तो जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर जो प्लेन्स है बहुत उपजाऊ है, ग्रासलैंड है, वहाँ पर फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें, फिशिंग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अमेरिका में बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए वह जो देश है वो बहुत ज़्यादा संपन्न देश है। नॉर्थ अमेरिका की बड़े नेशंस हैं यूएसए एंड कनाडा। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सो लेट्स रीड। द एंटायर थिंग्स गिवन फ्री बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल वेल्थ, बट व्हेन मैन बाय हिज इंटेलिजेंट स्किल एंड लेबर मेक्स देम यूजफुल देन दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचर जो भी हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है वो सारी जो है नेचुरल वेल्थ कहलाती हैं, लेकिन जब इंसान, मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से उन चीज़ों को और ज़्यादा यूज़फुल बना लेता है तब फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाने लगते हैं। Economic structure: the things which in their original forms or in changed forms provide benefit, their forms is called their economic structure. The total valuation of these speaks a particular region's economic structure. अब यदि कोई वस्तु अपना जो उसका ओरिजिनल रूप है उसमें या फिर उसके चेंज रूप में इकोनॉमिक प्रॉफिट प्रोवाइड करती है तो वह उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है और इनका वैल्यूएशन एरिया वाइज किया जाता है। नाउ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। Although only about 1/12 of the total area of North America is under cultivation, but it is still rich because the continent is vast and possesses very fertile plains. Suitable climate and sufficient water is available for irrigation. The agricultural products can be classified in two parts: food grains and cash crops. Extensive prairie grassland in the central and the river valley are suitable for farming. Extensive agriculture is the chief farming practice. The agriculture is developed in North America because the fields are big in shape. Big machines are used for farming. New scientific techniques is used for farming. Some areas are reserved for some special crops. अब नॉर्थ अमेरिका इतना उन्नत है और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत
रिच है, उसका रीज़न ये है कि नॉर्थ अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि 1/12 पोर्शन में ही वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है बहुत ही अच्छी होती है। उसका रीज़न है कि लैंड जो है, प्लेन जो है वहाँ का बहुत फर्टाइल है, सूटेबल क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए और सफिशिएंट वाटर है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, एक तो फूड ग्रेन, दूसरा कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स होंगे वीट, मेज, बार्ले, राइस, मिलेट एक्सेट्रा। कैश क्रॉप्स होंगी जिससे कि कैश प्राप्त किया जाता है तुरंत में, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, सोयाबीन, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स। नॉर्थ अमेरिका में सेंट्रल प्रेयरी ग्रासलैंड में और जो रिवर वैलीज हैं वहाँ पर फार्मिंग की जाती है और यहाँ पर की जाने वाली फार्मिंग को एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, विस्तृत खेती कहते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में उन्नत कृषि है, उसके बहुत से कारण हैं। जो फील्ड है उनका जो शेप है वो बड़ा है, फिर बहुत अच्छी अच्छी मशीनों का यूज़ करते हैं वो, कृषि के लिए वैज्ञानिक विधियाँ यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ वो कुछ एक विशेष क्षेत्र निश्चित कर दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों में यही फसल होगी, इस वजह से वो जो है कृषि में बहुत उन्नत है नॉर्थ अमेरिका। फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका: वीट, मेज, बार्ले, मिलेट, राइस, सोयाबीन, कॉटन, groundnut, tobacco, fruits, etc. So you will read about them in detail. Wheat is the rich crop of North America. The wheat is grown twice in a year, winter wheat and spring season wheat. Having immense production of wheat, the prairie regions are called the basket of bread. This region is also called the wheat belt. जो वीट है, गेहूं है, वो नॉर्थ अमेरिका की मुख्य फसल है और यह 2 बार बोई जाती है, एक तो सबसे पहले विंटर सीज़न में, दूसरा स्प्रिंग सीज़न में। और संसार में जो वीट का प्रोडक्शन है इसमें इसका नंबर 2nd स्थान पर आता है। जो बहुत ज़्यादा ये जो इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, इसके कारण जो प्रेयरी के जो मैदान हैं उन्हें बास्केट ऑफ ब्रेड बोला जाता है। और इस एरिया को, नॉर्थ अमेरिका के प्रेयरी एरिया को वीट बेल्ट भी कहा जाता है। तो इसी तरह से आप ये सारे मेज, बार्ले, मिलेट, ग्राउंडनट, फ्रूट्स एक्सेट्रा के बारे में आप पढ़ लेंगे। एज वेल एज यू हैव टू रीड द मैप एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास। In the page number 120, North America crops and livestock map is given here. You have to read this map. Now minerals and power resources. North America possesses wide variety of minerals. It is a major producer of petroleum, natural gas, nickel, zinc, lead, gold, silver, copper and iron ore in the world. About 32% of the world's zinc, 27% of coal, 25% petroleum are produced in North America. Mexico is the largest producer of silver in the world and second largest producer of coal and natural gas in the world. The mineral producing areas in North America are iron, copper, zinc, gold, silver, coal, petroleum, natural gas. नॉर्थ अमेरिका जो है मिनरल्स के मामले में बहुत ही समृद्ध है और यहाँ पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, निकल, जिंक, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अबाउट 32% जिंक जो है वो नॉर्थ अमेरिका से ही मिलता है वर्ल्ड का, 27% कोल भी यहीं से मिलता है, 25% पेट्रोलियम भी नॉर्थ अमेरिका ही प्रोड्यूस करता है यहाँ, इसलिए। और जो मैक्सिको है, नॉर्थ अमेरिका की मैक्सिको सिटी है, वह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर की वर्ल्ड में। इसके साथ साथ जो सेकेंड लार्जेस्ट, ये नॉर्थ अमेरिका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल और नेचुरल गैस का। अब मिनरल जो यहाँ पर पाए जाते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के किस एरिया में पाए जाते हैं, यू हैव टू रीड दिस। As well as North America is also rich in nickel, magnesium, phosphates and potash, uranium and aluminium. We will read about the forest resources of North America in the next video.